And about all the notes, that running notes which I gave during the classes, you please go through the previous recordings. Okay, in those classes you will find the notes also. Very little running notes I have given. Otherwise, I have shared the PDF notes after the topics are completed. Okay. So I believe you people have found all those uh, notes also, PDF notes. Vijay? Oh, yes, yes. In the chat. Yeah, in chat box. Yeah. Okay. Okay, so first kind of data which we will create is the organization data. Fine. Yes. Again, this organization data, as I showed you people, see, this is my organization. Okay, target retail. So first I need to check whether it is still available. Means, see, as we checked yesterday, like some of the data has been, some of the data were deleted from backend. So so we need to check that which all data is available and which all are deleted. Hmm. Okay, one more thing I would like to tell you first. See, these two first two thing, company and company code, these two data is created by the finance team. Okay, Yes. in real time project, these two, company and company code, will be created by the finance team. Rest three, this purchasing organization, plant and storage location, will be created by the team. Here we have no one from finance team to support us, so we will create all these things by ourselves. Got it? Yes, sir. So let me see first. OX02. My company code, I think it's TF. Okay, it's available. Right? Where does it go? Yes, it's available. ठीक है? It's available. No share. So what I'll do? Zero. It can't be deleted now. Hmm. Okay. So I'll have to take some other example. Okay, I'll take another company. Okay, I'll make another uh, data. Okay, same as target fashion. Make another set of information. You suggest which company we should take now? Uh, Pharmaceutical. investment. Okay. ठीक है? We'll move with this name. Okay.
ठीक है। कर देते इसको 3 कर देते। सो फार यू अंडरस्टूड दिस? Yes, क्लियर sir. है ये अब तक? मैं सिर्फ इनका डिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ अभी, एंड आई हैव गिवन द कोड्स अकॉर्डिंगली। ओके, अभी मैंने ये डेटा तैयार, मतलब एक रफ डेटा तैयार कर लिया यहाँ पे। अभी सेम थिंग वी विल यूज टू क्रिएट दीज 5 एंट्रीज ऑन एसएपी। ओके, अब एक एक करके हम देख Okay. लेंगे। अभी ये कंपनी क्या होती है? कंपनी जो होती है ना, वो पेरेंट कंपनी होती है। मान लो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था आपको डेमो के टाइम पे भी, कि मैंने टाटा मोटर्स का एग्जांपल लिया था, करेक्ट? तो टाटा मोटर्स एक पार्ट है, इट इज अ सेगमेंट, अ सिंगल सेगमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑफ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट? तो टाटा, अगर मैं टाटा कंपनी बोलता हूँ, तो टाटा कंपनी इज एन अम्ब्रेला कंपनी विच हैज मल्टीपल बिजनेस अंडर इट, करेक्ट है? Yes, sir. हाँ, तो कंपनी जो है ना, मान लो कि अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, तो यहाँ पे अगर कंपनी में बोलता हूँ, तो यहाँ टाटा कंपनी है, सिर्फ टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है। उसके बाद मान लो कि अब कंपनी कोड में आ गया, तो मैंने यहाँ पे डाला टाटा मोटर्स, मतलब उस ग्रुप ऑफ कंपनी के अंदर में एक कंपनी को पकड़ा मैंने, समझ गए? Yes. तो कंपनी Yes. का मतलब जो होता है, ये अम्ब्रेला कंपनी का नाम होता है, और जो कंपनी कोड होता है वो एक पर्टिकुलर बिजनेस उसका, ठीक है। और Yes. फिर इस बिजनेस के अंदर में अब इसका परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, इसका प्लांट, इसका स्टोरेज लोकेशन जो है, वो सारा कुछ बनाएंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम क्या करते हैं कि अब बिल्कुल शुरू से करेंगे। अभी सबसे पहले अपने को बनाना कंपनी, ठीक है। कंपनी के लिए टी कोड है। कंपनी क्रिएट करने के लिए टी कोड होता है OX15, 01. है ना? ठीक है। Sir, is this for all? Is this the same for all? Like how, sir? मीन्स आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। सेम फॉर ऑल मतलब क्या? How are you doing this code? दिस टी कोड ना, Uh, T code is universal for SAP. Wherever you go, wherever you are using SAP, T codes will remain the same. okay, what is that? So can you please enlarge that? I couldn't see very. See, I can't enlarge because my screen is, you have to enlarge from your end. Okay. On SAP, you will, sorry, on Skype itself, you will get an option. Okay, on the right side, you will see it's X1 करके एक symbol you will see on the right side. चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे ये टी कोड से हम यहाँ पे आ गए OX15 पे। अब मैंने बताया था आपको कि एक कंसल्टेंट के पास में 2 तरीके होते हैं नेविगेट करने के, टी कोड्स एंड नेविगेशन पाथ। तो हम अब नेविगेशन पाथ भी देख लेंगे। SPROIMG, इसमें आता है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। ये देखिए, अभी हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, और मैंने आपको बताया, अच्छा अभी हम डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं अभी क्या, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर को। तो हम डेफिनेशन में आएंगे, और मैंने आपको बताया था कि पहला जो 2 पार्ट है इसका, जो कंपनी एंड कंपनी कोड, दैट इज क्रिएटेड बाय द फाइनेंशियल टीम। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आएंगे हम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में डिफाइंड कंपनी आ गया, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे, सेम पेज जैसा अभी हम टी कोड से आए थे, वैसे ही सेम पेज है ये। यहाँ पे अपने को न्यू एंट्रीज पे क्लिक करना, ठीक है। अब यहाँ पे हम
कंपनी डालेंगे, Sir, कंपनी मतलब इसी SAP code, what is that, sir? Company D code? OX15. OX15. Okay, हाँ, sir. you will get all the codes. I'll when you see the PDF notes which I shared na, in that notes you will find the codes also. You will find these navigation path as well as the codes. You'll find both the things. Okay. So don't focus on T codes and paths right now. Just see how I am doing, what entries I am doing. Focus on that, because see, in the notes you will find the T codes. Okay. Right now, just focus on what entries I am doing, how I am doing, and what all things I am creating. Okay. Okay, sir. And if there is any confusion, you can go through the previous recordings as well. And today's class is also being recorded, so you can go through it also. Okay. अभी हम यहाँ पे अब अपना जो 6 कैरेक्टर्स जो हमने बनाया था कंपनी के लिए, ये पहला, ये अपने को डालना है वहाँ पे। करने का तो ऑप्शन खत्म ही हुआ है, भी करना पड़ेगा। JHAR यही बनाया था ना, कंपनी नेम था रिजुल, ये बनाया। अब इसका जो एड्रेस वगैरह डालना है अगर, ठीक है, तो एड्रेस हम डाल सकते हैं। रिजुल आप कहाँ से हैं, उसी जगह का एड्रेस डाल दें। मुंबई, लाइक हाँ ठीक है, मुंबई का ही डाल देते, कोई बात नहीं। आप एड्रेस इतना स्पेसिफिक नहीं करना अपने को, तो कुछ भी डाल देंगे, ठीक है। पीओ बॉक्स नंबर नहीं डालते, पोस्टल कोड मान लो 6 डिजिट का होता है, कुछ भी डाल दिया। सिटी, ये बस, ये मैं अभी कुछ भी डाल के कर रहा हूँ, रियल प्रोजेक्ट में कुछ भी नहीं होएगा, वो तो बराबर डालेंगे, प्रॉपर जो रहता है वही डालेंगे, ठीक है। अभी मान लो कि यही एड्रेस है, ये एड्रेस अपने को फीड करना था। ये मैंने कंट्री ओरिजिन डाल दिया, रीजन कंट्री अपना इंडिया है, IN करके, लैंग्वेज में इंग्लिश हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, इसमें यहाँ पे आ करके भी हम देख सकते हैं ई ये आ गया इंग्लिश, ठीक है। अब करेंसी में हमारा INR रहेगा, इंडियन रुपीज, बराबर है। इसको कर देंगे अपन। सर एक करेंसी, लाइक अगर कंपनी बाहर से कुछ प्रोक्योर करे, डॉलर या यूरो, हाँ तो वो तो फिर कन्वर्जन रेट रहेगा ही ना उसका, वो तो कन्वर्जन आएगा ही। अगर आप इंडिया में डील कर रहे हैं तो INR में रहेगा, अगर कोई बाहर की कंपनी है तो करेंसी। मैंने क्या कहा, ये सारा इसके पीछे इतना दिमाग नहीं लगाना आपको, ये अभी हम नेशनल कंपनी लेकर चल रहे हैं। मैंने क्या कहा, कंपनी एंड कंपनी कोड विल बी क्रिएटेड बाय फाइनेंशियल टीम, सो ये उनकी सरदर्दी है, ओके ओके, है ना। ठीक है। हम इंडियन लेकर के चल रहे हैं अभी, ताकि हमारा आगे की एंट्रीज वगैरह जो है वो आसान रहे। अब इतना हम तो कुछ भी करेंगे, अपने को इंडियन रुपीस में समझना ज़्यादा आसान रहेगा ना। करेक्ट करेक्ट सर। तो बस हम वही लेकर के चल रहे हैं। फिनेंशियल टर्म जो कुछ भी है, जो भी कंडीशंस है, वो सारा का सारा फिनांस टीम के सरदर्दी है, ओके, ठीक है। इसके बाद ये करने के बाद अपन इसको सेव कर देंगे। अच्छा, कितने डिजिट का कर दिया Sir, 6, 7 डिजिट का हो गया ये, 7, ओके, yes. ठीक है। Printer मारेंगे क्या? हाँ, अब यहाँ पे मैं कस्टमाइज करूंगा इसको, 1 मिनट। एक तो बारिश हो रही थी, सारे घर भाग गए। यहाँ पे 6 बजे सो डाल देता हूँ, और इसको करते हैं सेव। मैं तो ऑफिस से निकलता होने लगी बारिश। हमारे से ना तो बाटा चौक से पहले इसको सेव कर देते हैं। ओ, मिस्टेक हो गया, चलो कोई नहीं, कॉपी तो होता नहीं वो। मैंने कहा 1 मिनट यहीं पे चिपका लेते हैं पहले। ये है 90 5348 5348
ठीक है, अभी एक चीज बना, हमारा कंपनी बना है, ठीक है। अब उसके बाद हम बनाएंगे कंपनी कोड, ठीक है। ये हमारा सेव हो चुका है, बैक जाएंगे, ये देखिए बन चुका है, ठीक है। रिजल फार्मा के नाम से ये आ चुका है। अब हम बैक जाएंगे, इसी में देखिए देख रहे हैं, एडिट कंपनी डिलीट, ये है ना कंपनी कोड। अगर हम टी कोड के थ्रू आएंगे तो टी कोड इसका है EC01, और पाथ अगर देखेंगे तो इसी पाथ में, सेम पाथ से हम आए हैं, इसमें डिफाइंड कंपनी कर रहे हैं और यहाँ पे एडिट कंपनी, ठीक है। अभी यहाँ पे अच्छा कॉपी करना अपने को, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए टी कोड यहाँ नीचे लिख करके आ रहा है आपको। यस सर, EC01 हाँ मतलब इस साइड भी डायरेक्टली ओपन होगा ना? हाँ, ओके ये टी कोड आपको यहाँ दिख रहा है, बट अपन आए वो नेविगेशन पाथ से, ओके ठीक है। और यहाँ पे अपने को डालना है कंपनी कोड, ठीक है। यहाँ पे हम कौन सा कंपनी कोड डालेंगे, जो हमने डिफाइन किया था, क्या किया था हमने, RP00, ठीक है। डाल देंगे RP00। कंपनी को पहले से प्री डिफाइंड आता है, हाँ, जो ऊपर आया फ्रॉम में, फ्रॉम तो कंपनी ये मैंने डाला, ये मैंने कॉपी किया है। क्या हुआ यार फिर? पानी चाहिए कि जो कंपनी हम कोड चाहिए, ऑलरेडी बना हुआ जमीन है, चाहिए एक हमें। स्टैंडर्ड है 1710 का, मैं उससे कॉपी ओके कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उससे कॉपी कर रहा ओके हूँ। ओके गॉट इट। अब इसमें सब कॉपी करेंगे, करेंसी डाल देंगे INR, यही रखना अपने को। नंबर रेंज नहीं करना अपने को। अब देखिए यहाँ पे कॉपी हो रहा है डेटा पूरा, हो गया। इसमें सेव कर देंगे अपन। कॉपी होने में थोड़ा टाइम लगता है, होने दीजिए कॉपी इसको। तो इसमें जो प्लांट कोड और वो बनाया सारा डाटा इसमें होगा ना नहीं डाउनलोड? नहीं, वो अभी कहाँ इसमें हो जाएगा, वो तो अपने को बनाना ही है, क्योंकि हमने कॉपी किया है क्या, बैक एंड का डेटा। जी जी। वो तो अपने को डिफाइन एंटरप्राइज करना, क्योंकि हमारा प्लांट तो, हम तो नया प्लांट बना रहे हैं ना, उस प्लांट के अंदर तो अपने को नया बनाना पड़ेगा और उसको असाइन करना पड़ेगा। एंटरप्राइज क्या हो गया, ये अटक क्यों गया। आगे बढ़ जाए भाई।
हाँ 78 हुआ। ओके ये सर हाँ पिछली बार अपन ने 1000 से कॉपी किया था ना। हाँ 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 तो 1000 से भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 1000 से भी कर सकते हैं। और ये कॉपी सर लाइव प्रोजेक्ट में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? लाइव प्रोजेक्ट में दूसरा आपको थोड़ी मिलेगा जो आप कॉपी करेंगे। वही चीज समझ में नहीं आ रहा था मेरे। नहीं तो लाइव प्रोजेक्ट आपको ये चीज बनाना ही नहीं है ना, मैंने क्या कहा। हाँ हाँ वो तो अकाउंट फाइनेंस देखेगा। हाँ फाइनेंस वाले बना करके देंगे, हाँ हाँ इसलिए लाइव में अपने को इसका टेंशन ही नहीं है। ठीक है ये हो गया, बैक जाएंगे। अब अपन इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना कंपनी कोड जो हमने अभी बनाया है रिजल्ट फार्मा 00, इसको चेक करेंगे आया क्या। आ गया, देखिए आ गया ये, बट यहाँ पे कंपनी नेम कुछ और आ रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हमने कंपनी नाम डाला नहीं था, हमने सिर्फ कंपनी कोड डालकर कॉपी किया है। तो जिससे कॉपी किया है उसका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब अपने को इस पर डबल क्लिक करना, ये खुल गया। हम यहाँ पे अब नाम चेंज करेंगे, इसका नाम क्या रहेगा वही, ठीक है। सिटी मुंबई, कंट्री IN, करेंसी INR, ठीक है ये रहेगा। एंटर कर दीजिए, सेव कर दीजिए। ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये एड्रेस वड्रेस डालने का भी ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं ये एड्रेस वगैरह डालने। सर पहले ही एक हमने एड्रेस डाला था, बट ये अभी कंपनी 1710 लिया करके प्री डिफाइंड जो था वो ले लिया ना उसने। हाँ, नहीं वो तो हमने कंपनी के लिए बनाया ना, पेरेंट कंपनी का जो बनाया, जो अम्ब्रेला कंपनी उसका दिया था। ओके ओके हाँ ओके। ठीक है। तो ये उसका कंपनी ये हमने उसके कॉपी अंडर। किया, इस वजह से यहाँ पे एड्रेस वगैरह आ रहा है प्रीडिफाइंड, अदरवाइज ये नहीं आता, ठीक है। ओके अदरवाइज ये ब्लैंक रहेगा। क्योंकि हमने कॉपी किया है इसलिए ये प्रीडिफाइंड आ रहा है। और वो जो एड्रेस डाला हमने वो पेरेंट कंपनी के लिए डाला था, यहाँ पे तो डालना ही डालना है वैसे भी, ठीक है। गॉट इट। ये सर्च टर्म है, जैसे किस टर्म से आप कभी अगर ढूंढना पड़े तो किस टर्म से ढूंढेंगे वो करने के लिए बस यहाँ पे। सेंटा क्लारा, चल ठीक है, सेंटा क्रूज है ना बॉम्बे, सेंटा क्लारा ही रहने दो। पोस्टल कोड
6 सिटी मुंबई IN रीजन में हो जाएगा MH, टाइम जोन भी IN का आएगा। अफगानिस्तान क्यों आ रहा है, एक मिनट। IST होगा ना सर शायद। हाँ हाँ वही होगा, नहीं अफगानिस्तान का ही आ रहा है, डे एंड नाइट करके आ रहा है। कोई नहीं, हम यहाँ पे भी कुछ नहीं डालेंगे, जुरिस्डिक्शन भी हटा देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश होना बस, ईमेल वगैरह हटा दीजिए, अभी कोई मतलब नहीं है। ये करके सेव कर दिया इसको। ठीक है, सेव हो गया ये। आपका कंपनी बन गया, कंपनी कोड बन गया, बराबर। अब अपने को बनाना परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो टी कोड होता है, टी कोड है उसका OX08। ठीक है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बट हम नेविगेशन पाथ के थ्रू आएंगे और फिर बनाएंगे। नेविगेशन पाथ कैसे होता है, SPRO SAP रेफरेंस IMG। अगेन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं अभी भी, उसको डिफाइन कर रहे हैं अभी। डिफाइन का काम मैंने क्या बोला था कि पहला 2 जो था वो फिनांस टीम बनाती है, उसके बाद फिर हम आ जाते हैं मटेरियल्स मैनेजमेंट में। मटेरियल्स मैनेजमेंट में ये भी आएगा और लॉजिस्टिक जनरल का भी थोड़ा सा पार्ट आएगा। ठीक है, तो मटेरियल्स मैनेजमेंट में ये अभी बनेगा हमारे। हम क्या बना रहे हैं अभी हम क्या बनाने की कोशिश करें, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे। ठीक है, मटेरियल्स मैनेजमेंट क्लिक किया, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे न्यू एंट्रीज पे क्लिक। यहाँ पे अपना हम परचेसिंग परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन डालेंगे। ठीक है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन मतलब यहाँ पे जो हमने 4 कैरेक्टर बना रखा है उसका वो डालना अपने को। तो हमने बनाया था रियल फार्मा PO परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये रहेगा। और इसको डिफाइन करना है, इसका डेफिनेशन लिखना है, डिस्क्राइब करना है इसको। सॉरी, प्लांट 1 नहीं PO के लिए। हाँ, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। ठीक है, ये 4 कैरेक्टर डाल दिया, उसको डिस्क्रिप्शन कर दिया, एंटर कीजिए, सेव कर दीजिए। ये बन गया। अब इसका फिर से बैक जाएंगे, चेक करना आपको यहाँ डाल करके रियल फार्मा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन आ गया, ये वाला है ना, वही है। बैक चले जाते हैं। अब प्लांट कर दिया हमने, सॉरी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। अब उसके बाद हम बनाएंगे प्लांट। ठीक है, अब फिर से हम बनाएंगे प्लांट। प्लांट बनाने का जो टी कोड है वो OX10 है प्लांट बनाने के लिए, है ना। टी कोड OX10। हम टी कोड से नहीं जाएंगे, हम फिर से नेविगेशन पाथ SPRO रेफरेंस IMG। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन। ठीक है, अब लॉजिस्टिक्स जनरल में आएंगे। ये प्लांट जो है लॉजिस्टिक्स जनरल में आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आ रहा है कॉपी डिलीट चेक प्लांट, हमको इस पर क्लिक करना है, डिफाइन प्लांट पे डबल क्लिक कर देंगे।
ठीक है। अब उसके बाद यही न्यू एंट्रीज पे, न्यू एंट्रीज पे क्लिक करने के बाद आप अपना प्लान डाल दीजिए। क्या था हमारा? रेजुल फार्मा पीएल, आरपीपीएल था ना? एक मिनट देखते हैं, यही था ना? वो तो आरपीपीओ उसका परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन का था। आरपीपीएल है, करेक्ट करेक्ट। इसका नेम डाल देते हैं, फार्मा प्लांट 1। ठीक है। लैंग्वेज की एक मिनट एंटर कर देते हैं। अभी यहाँ पे सिटी कोड डालने को है, काउंटी कोड डालने को है, सब छोड़ दीजिए। फैक्ट्री कैलेंडर अपन इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। सर एक कैलेंडर में क्या डिफरेंस होता है कंट्री वाइज? कंट्री वाइज अपना कंट्री का कुछ कैलेंडर डिफरेंस जैसे होता है क्या? हाँ रहेगा ना, जैसे कि हॉलीडेज वगैरह का रहता है ना, ओके ओके गॉट इट। हाँ वो उस हिसाब से अपडेट करने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे एड्रेस आइकन है, मेन सारा एंट्री अब यहाँ पे होगा। ये हमने ये 2 डाल दिया, एड्रेस आइकन इस पे आना है। टाइटल, कंपनी नेम, ठीक है। अब इसका नाम क्या देंगे? यही जो यहाँ पे है। सिस्टम विजुअल कर देंगे। इसका एड्रेस अभी हमारे पास में कुछ नहीं है। पोस्टल कोड इसका मुंबई, इंडिया, रीजन MH, महाराष्ट्र, लैंग्वेज इंग्लिश ही रखना है अपने को। हो गया। विजुअल फार्मा ही रहेगा, प्लांट नहीं रहेगा, ये कंपनी का दे देना। सेव कर देंगे इसको। ठीक है, सेव कर दीजिए। अरे हो तो गया बाबा। करेंसी वगैरह है इसमें? नहीं है, ठीक है। सेव कर दीजिए इसको। ये हो गया। ठीक है, ये अपना प्लांट भी बन गया। ठीक है, अब प्लांट के बाद आ जाते हैं वापस से स्टोरेज लोकेशन पे। स्टोरेज लोकेशन के लिए देखिए, अगर फिर से अपन फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मटेरियल्स मैनेजमेंट में आते हैं, सेम उसी इससे यहाँ देखिए स्टोरेज लोकेशन भी है यहाँ पे। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन का टी कोड जो है OX09 है। ठीक है, स्टोरेज लोकेशन का कोड OX09। अब यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन कभी भी सिंगल एंटिटी नहीं बनेगा। अभी कैसे हमने प्लांट बना दिया अलग से, है ना, प्लांट बना दिया अलग से, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन बना दिया अलग से, लेकिन स्टोरेज लोकेशन कभी भी हम अलग से नहीं बना पाएंगे। स्टोरेज लोकेशन जब भी बनेगा वो प्लांट के साथ अटैच्ड रहेगा। समझ रहे हैं? ओके तो स्टोरेज लोकेशन बनाने से पहले मेरे को प्लांट डालना पड़ेगा कि कौन से प्लांट का स्टोरेज लोकेशन अपन बना रहे हैं। स्टोरेज लोकेशन कभी भी सेपरेट नहीं बनेगा, वो हमेशा किसी न किसी प्लांट के साथ एसोसिएट रहेगा। क्लियर है? यस। तो आरपीपीएल हमारा प्लांट ये था, एंटर करेंगे, आरपीपीएल आ गया। अब यहाँ पे स्टोरेज लोकेशन डालना है अपने को। ठीक है, न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे और जितना स्टोरेज लोकेशन आपको डालना है
ठीक है, जितना बनाना है, RP01, RP02, RP03, मान लो 3 ही बनाते हैं। अच्छा, स्टोर 1 स्टोर 2। हाँ वैसे ही करते हैं, वैसे ही करके करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कैरेक्टर के भी लिमिटेशंस रहते हैं ना, आप ज़्यादा लेंदी लिख नहीं सकते। ठीक है, ये कर दिया, एंटर कर दीजिए और सेव कर दीजिए इसको। ये भी आपका बन गया। ठीक है, हमने 5 चीज़ें बना ली। क्लियर है, हमने 5 Yes. चीज़ें बना दी। अभी क्या है कि सारी चीज़ें ये अलग अलग हैं। कंपनी अलग बना हुआ है, कंपनी कोड अलग बना हुआ है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन अलग बना हुआ है, और प्लांट और स्टोरेज लोकेशन अलग से बने हुए हैं। ठीक है, प्लांट और स्टोरेज लोकेशन आपस में कनेक्टेड है, इसलिए मैं इन दोनों को एक मान के चल रहा हूँ। तो ये 1 2 3 और ये 4, ये 4 एंटिटीज बन तो गए हैं, बट चारों अभी एक दूसरे से अलग है, कनेक्शन इन सबके बीच में नहीं है। क्लियर है? सो प्लांट और स्टोरेज लोकेशन में तो होगा ना। हाँ, वो तो मैं बोल रहा हूँ, इन दोनों को एक एंटिटी मान लिया मैंने, तभी तो 4 बोल रहा हूँ, 1 2 3 एंड ये 4। ओके समझे? ओके। हाँ, तो ये 4 एंटिटीज जो हैं अभी ये चारों आपस में कनेक्टेड नहीं है। बराबर? बराबर। ये देखिए दिखाता आपको। ये देखिए, क्लाइंट जो है, जो कंपनी हमने बनाया था वो क्लाइंट कहलाता है। ठीक है, मेन क्लाइंट जो पेरेंट कंपनी होता है, उसके अंदर हम बनाते हैं कंपनी कोड। ठीक है, परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन। बराबर है? ये सब कनेक्टेड है ना आपस में, देख रहे हैं, ये लाइन से कनेक्ट किया हुआ है सारा। तो ये कनेक्शन अभी हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, अभी वो स्ट्रक्चर नहीं है, वो एक एक समझ लीजिए कि अलग अलग ब्रिक है। अभी वो स्ट्रक्चर उसका तैयार नहीं हुआ, अभी हमने उसको आपस में कनेक्ट नहीं करा है। तो वो कनेक्शन का काम अभी बाकी रह गया, उसको कहते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑफ एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, वो करना बाकी रह गया है। तो वो भी हम कर लेते हैं। ठीक है, अभी अपने को सबसे पहले असाइन करना है कंपनी कोड टू कंपनी। ठीक है, अब कंपनी कोड हम असाइन करेंगे कंपनी को। ये देखिए, ये कंपनी कोड है, इसको कनेक्ट करना है कंपनी के साथ में, क्लाइंट के साथ में। बराबर? ठीक है ना? यस सर। तो ये कंपनी को अब अभी कनेक्ट करना पेरेंट कंपनी के साथ में। तो ये सारा काम SPRO से, नेविगेशन पाथ के थ्रू। अरे एक मिनट, ठीक है। तो हम नेविगेशन पाथ से जाएंगे, SPRO, SAP रेफरेंस IMG, अगेन एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। हम अभी यही काम कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेशन का काम कर दिया, अब हमारे को असाइनमेंट का काम करना है। बराबर? असाइनमेंट में आएंगे, असाइनमेंट में अगेन अभी हमको क्या असाइन करना है, कंपनी टू कंपनी कोड, सॉरी कंपनी कोड टू कंपनी। तो कंपनी कोड और कंपनी बनाने का काम फिनेंशियल अकाउंटिंग वाले करते थे, तो फिनेंशियल अकाउंटिंग में आएगा। ये देखिए, यहाँ आ गया असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक कीजिए और मेरा कंपनी कोड एंटर करेंगे, ये बन गया। यहाँ पे कंपनी
नहीं आया है, तो कंपनी अभी अपने को डालना है। कंपनी क्या था मेरा, 6 कैरेक्टर का जो हमने बनाया था, यस सर। RJ, ये बनाया था ना, यस। ये आ गया, ठीक है। करके इसको एंटर कीजिए, सेव कर दीजिए, वो असाइनमेंट का काम हो गया इसका, यस। ठीक है। अब क्या असाइन करना अपने को, अब असाइन करना अपने को प्लांट करना है कंपनी कोड में। बैक जाएंगे, प्लांट अगर करना है कंपनी कोड को तो OX18 भी है टी कोड, ठीक है। असाइनमेंट प्लांट कंपनी कोड, लेकिन हम टी कोड से नहीं जाएंगे, पाथ से जाएंगे। SPRO रेफरेंस IMG, फिर से वही एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, क्योंकि हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर ही बना रहे हैं, असाइनमेंट का काम कर रहे हैं। असाइनमेंट में आएंगे, प्लांट का काम है तो लॉजिस्टिक्स जनरल में आएगा ये, ठीक है। देखिए असाइन प्लांट टू कंपनी कोड आ गया, क्लिक करना है इस पर, ठीक है। अब न्यू एंट्रीज पे, यहाँ पे हम न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपने को कंपनी कोड डालना है। मेरा कंपनी कोड क्या था, ये है, और मेरा प्लांट क्या था, ये है ना। यस सर। एंटर करेंगे, आ जाएगा, आ गया। यस। अब इसको कर दीजिए सेव, ये भी हो गया। अब इसके बाद बच गया क्या, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन रह गया, ठीक है। अब परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है ये 2 लेवल पे असाइन होता है। अब एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसा होता है, कहीं कहीं किसी कंपनी में, जैसे कोई एक अम्ब्रेला कंपनी है, ठीक है, या बहुत सारी ऐसी कंपनी जिसके ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं, ठीक है, उनके प्लांट्स बहुत जगह पे हैं, लेकिन एक कॉर्पोरेट ऑफिस होता है उनका, मान लो कि गुड़गांव में होगा या बैंगलोर में होगा या बॉम्बे में होगा, ठीक है, किसी एक जगह पे एक उनका कॉर्पोरेट ऑफिस होता है। यस सर। इस और वहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस है, और मान लो कि उनके ब्रांचेस, उनके प्लांट्स 3-4 अलग अलग लोकेशन में है, अलग अलग शहरों में है, और हर प्लांट के लिए जो भी परचेजिंग का काम है, वो कंपनी क्या कहती है कि भाई जहाँ के लिए भी, किसी भी मेरे चारों लोकेशन में, चारों प्लांट्स में कुछ भी परचेज करना है, कुछ भी मटेरियल का रिक्वायरमेंट है, वो रिक्विजिशन हमारे सेंट्रल टीम को भेजो। कॉर्पोरेट ऑफिस में एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हमने बना दिया है, वहाँ भेजो, वहीं से सारे का सारा परचेजिंग का काम होगा, ठीक है। ऐसा सिनेरियो होता है, किसी किसी कंपनीज में होता है ये सिनेरियो, यस सर। होता है ना, कि एक सेंट्रल परचेजिंग टीम रहती है जो कि कंपनी, जहाँ पे कॉर्पोरेट ऑफिस है वहीं पे बैठी रहती है, और वो अपनी कंपनी के जितने भी प्लांट्स हैं सबके लिए परचेजिंग, वही एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन करती है, ठीक है। ये एक सिनेरियो हो गया। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि एक कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, उसके 4-5 अलग अलग प्लांट्स हैं, और हर एक प्लांट के लिए अलग अलग परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है बना हुआ, परचेजिंग डिपार्टमेंट है बना हुआ, ये भी होता है, यस। होता है ना। यस यस सर। तो ये 2 तरह का सिनेरियो है, तो इन दोनों सिनेरियो को एसएपी में कवर किया गया है। जो परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, जब आप इसको असाइन कर रहे होते हैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को आप प्लांट के साथ भी असाइन करते हैं और कंपनी कोड के साथ भी असाइन करते हैं, ठीक है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन प्लांट के साथ में कब होगा, जब परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन हर एक प्लांट के लिए इंडिविजुअल अलग अलग बना हुआ है, कि हर एक प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उस सिनेरियो में परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है प्लांट के साथ असाइन रहेगा। जो मैंने पहला सिनेरियो बताया कि एक कॉर्पोरेट ऑफिस के में ही एक परचेजिंग डिपार्टमेंट बना दिया गया है, जो कि उनके इंटायर बिजनेस के लिए, चाहे कहीं भी प्लांट हो, सबके लिए परचेजिंग वही एक पर्टिकुलर एक सिंगल परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन वही करेगा। उस कंडीशन में उसका असाइनमेंट कंपनी कोड के साथ किया जाता है। समझे मेरी बात? यस सर। ये 2 सिनेरियो होता है। हम
यहाँ पे दोनों के साथ असाइन करके चलेंगे, ठीक है, ओके ताकि आपको पता रहे दोनों के साथ असाइनमेंट होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कंपनी के नेचर के ऊपर, कंपनी के फंक्शनिंग के ऊपर कि वो किसके साथ असाइन करना चाहती है, चाहे वो प्लांट के साथ करवा दे या फिर कंपनी कोड के साथ करवा दे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? यस सर। पता है, ठीक है। चलिए इसको भी करेंगे वैसे ही एसपीआरओ से। फिर से वही एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, अभी एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का ही काम चल रहा है, असाइनमेंट का काम कर रहे हैं, ये मटेरियल्स मैनेजमेंट में आ जाएगा, असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड आ गया, क्लिक करेंगे, ठीक है। पोजीशन पे आएंगे, हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या था? जुल फार्मा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, यही था। एंटर करेंगे, कंपनी कोड यहाँ पे मिसिंग है, अपने को यहाँ पे कंपनी कोड डालना है, ये हमारा कंपनी कोड, एंटर कीजिए, आ गया, सेव कर दीजिए, हो गया, यस सर। हो गया, यहाँ पे ये सेव हो सर गया। एक डाउट था कि एट इंडिविजुअल केस में दोनों भी कंडीशंस में हो सकता है कि एट अ टाइम एक ही कंडीशन में हो सकता है, लाइक इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, प्लांट कंपनी क्या कह रही है। हम कर सकते हैं, Okay. हम तो दोनों ही कर सकते हैं एट ए टाइम। अभी देखिए, अभी मैंने प्लांट कोड के साथ भी कर दिया ना, कंपनी कोड के साथ कर दिया, अभी प्लांट के साथ भी असाइन कर देंगे, उसके जस्ट Okay. नीचे देखिए, है ना, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट, ये भी हम करेंगे, ओके हम दोनों ही कर देंगे। लेकिन रियल सिनारियो में दोनों के साथ होता भी है, दोनों के साथ भी करते हैं और इंडिविजुअल भी होता है। तो यहाँ पे हम परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी ये नहीं करना अपने को, न्यू एंट्रीज में आना, पहले एंट्री करेंगे तब तो देखेंगे। हाँ, यहाँ पे हमारे को परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डालना है और प्लांट है हमारा RPPN। ठीक है, एंटर कीजिए, डेटा आ गया, सेव कर दीजिए, ठीक है। ये सारा का सारा आपका असाइन हो गया एक दूसरे को, जो डेटा असाइन होना था असाइन हो चुका, असाइनमेंट का काम कंप्लीट। अब आपने सब कुछ एक दूसरे को असाइन कर दिया। अब ये सारा का सारा स्ट्रक्चर जो आपका तैयार हुआ, अभी आपने जो बनाया है, क्या बनाया था? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया था एसएपी पे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अगर आपको अपनी कंपनी का चेक करना है एसएपी स्क्रीन पे, एक सिंगल स्क्रीन पे, तो वो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए टी कोड है EC01, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रक्चर पे क्लिक करेंगे, नेविगेशन पे, ओके, पूरी लिस्ट खुल गई, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल F कीजिए और अपने कंपनी का कोड डालिएगा, मेरा था RP00, एंटर करूंगा, खुल गया, इस पर मैं डबल क्लिक करूंगा, आ गया, इस पे डबल क्लिक फिर से करना, खुल गया मेरा स्ट्रक्चर यहाँ पे, देख रहे हैं? यस सर। रिजल फार्मा कंपनी, ठीक है, ये कंपनी कोड है मेरा, कंपनी क्या है? रिजल फार्मा, ये देखिए 6 कैरेक्टर में आ गया मेरा, ठीक है। ये मेरा प्लांट आ गया, ये मेरा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आ गया। अब इसको अगर मैं अगर प्लांट को एनलार्ज करता हूँ, प्लांट के अंदर मेरा ये स्टोरेज लोकेशन है, ठीक है, यस है ना। ये प्लांट किस कंपनी कोड के साथ में है, कौन सा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सब आ जाता है उसके साथ में, ठीक है। ये आपका बेसिकली ये आपका स्ट्रक्चर होता है जो आप देखते हैं। यस सर। क्लियर है ये इतना? यस सर क्लियर है। ठीक है, माधवी। वो
जो Yes, आपने sir. पीडीएफ सर शेयर किया उसमें सब दिया है ना लाइक चैट में? हाँ चैट, वही तो बोल रहा हूँ, चैट में आपको सारा मिल जाएगा। इसमें देखिए, इसमें इसमें सारा कुछ दिया हुआ है, हमने क्या करा है। यहाँ से देखिए, डिफाइन कंपनी नेम कैसे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये स्टेप दिया हुआ है, जो पाथ है इसका, आपको कैसे अपना कस्टमाइजेशन रिक्वेस्ट करके सेव करना है, ठीक है। कंपनी कोड डिफाइन करने के लिए कोड, ऐसा प्लांट, देख रहे हैं, ये सारा कुछ है। ठीक है, यस सर। चलिए माधवी, आपको कुछ समझ में आया? Yes, sir. I have understood, but again I will go through that Yeah, video. Sir. yeah, that will be very much important. You need to go through the recordings. मैंने क्या कहा कि मैं उतना एक्सप्लेनेटरी क्लास नहीं ले रहा, मैं उतना एलाबोरेट करके नहीं ले रहा, ठीक है। Okay, sir. तो अभी क्या मैं रिवाइज करा रहा हूँ, ताकि क्या है Okay. कि आप लोगों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और वीडियो आपको जो लास्ट क्लासेस की रिकॉर्डिंग है वो देखनी पड़ेगी, ताकि आपको अगर कोई रनिंग नोट्स वगैरह लेने, क्योंकि आप जब वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर करके मैंने क्लास की है वो, ठीक है। तो Okay, sir. आप नोट्स वगैरह वहाँ से बना लीजिए देख करके। कुछ डाउट्स अगर होंगे ना, अगर आप वो वीडियो देखें तो वो डाउट्स क्लियर हो जाएंगे आपके। Yes. Even after watching those videos, if you feel there is something you need clarification upon, then you can ask me. Yes, sir. Okay. Sure. सभी प्रैक्टिस के लिए और कंपनी बना सकते हैं ना, ऐसा हाँ, कुछ इशू आप नहीं है ना? बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। Okay. आप जितने उतना बनाइए, ये तो मैं बना रहा हूँ, इसके ऊपर आपको काम नहीं करना, आपको अपनी कंपनी खुद बनानी है। करेक्ट। ये ओके रिचुअल सर। बना करके मैं बना रहा हूँ, अब इसको मैं ही लेकर चलूंगा, आप अपना दूसरा बनाइए फिर, ठीक है। ओके फाइन फाइन। यस। ठीक है, ओके।